Namaste all, welcome to my channel. I am Shalini, a girl to whom life handed over failure even before she could taste the meaning of success. Yes, I first experienced my failure in the first academic year of my school life, that is kindergarten. Since then, throughout my school, I had been underperforming. Still, in grade 7, when my teacher asked, Shalini, what is your aim in life? I told I want to become a CA. I had no clue about this degree. I just knew one thing. If I become a chartered accountant, my father will be proud of me. So how I got to understand that, in 2002, my sister, she cleared her CA finals. It was not just the result, it was a happiness, celebration, pride she brought inside the family. घर का ना वाइब सी चेंज हो गया था. पापा का वो प्राइड, खुशी देखते हुए आई फेल्ट मेरे को भी सीए बनना है, मेरे को पापा को प्राउड फील कराना है. एंड देयर माई स्टोरी स्टार्टेड. So firstly, my gratitude to my sister. Because of her, I found this journey. Now I was in grade 7, underperforming, still growing in life. करते करते I did reach grade 10, 74% आया. Now it was 11th, 12th where we had to choose science, commerce or arts. Definitely मेरा goal clear था, CA बनना है, तो I went with commerce. When I started my 11th, 12th in another school with different set of students, classmate, environment, everything changed. I changed an inner belief within me. I said, Shalini, अब ये मान लो you are joining a kindergarten where you have just like you किसी को भी कॉमर्स का नॉलेज नहीं है. So यहाँ से ना अपना academics journey चेंज करना स्टार्ट करो. I started believing in myself, एक कॉन्फिडेंस लाना स्टार्ट कर दिए and I did put efforts to clear with good marks मेरे एग्जाम्स में 11th-12th में. And honestly, I was doing really well. पता है, अब it was not just academically I started growing. I realized importance of money. We have been those children who has not been overly pampered. Yes, definitely. Life में जितना basic necessities है, my father and brother, they have provided. And as we were growing, our needs was also growing. But we were not those kids who could go to family and ask money to go out with friends या to buy a new cloth, because parents भी ना उसी टाइम पे स्क्रैच से चीजों को बिल्ड कर रहे थे. So seeing it, a journey where you have seen your family members struggling financially, raising a family, educating people, I knew the importance of money, but कभी भी खुद से कनेक्ट नहीं कर पाए unless I started noticing things around me. So एक और शिफ्ट आया था अंदर से कि मेरे को सीए सिर्फ पापा को प्राउड फील कराने नहीं करना है. Now I have second reason. Also, I want to be financially independent. I want to start working so that I can give myself everything I deserve. I just want to enjoy life, be with people whom I like, whom I love, to fit well with confidence. And मेरे को ऐसा फील होने लग गया, money brings not, मतलब ये जो बोलते हैं ना, money can't buy happiness. I don't believe in this right from day one. I think money can buy happiness if it is used rightly. तो मेरे को मनी के टूवर्ड्स इम्पोर्टेंस रियलाइज होना स्टार्ट हो गया. ये समझ आने लग गया, इफ आई वर्क हार्ड I will be independent and I will be able to fulfill all my dreams and I can give a life which my mother deserves. तो मेरे को एक मम्मी के towards भी attachment बहुत ज़्यादा था from childhood and I wanted to fulfill all the little things she want. ठीक है? And there it all started. So before proceeding ahead, एक चीज़, अगर आप अपना करियर चूज कर रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, योर वाई शुड बी क्लियर. इफ योर वाई इज क्लियर ना, आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा, क्लैरिटी, मोटिवेशन एंड पढ़ने के लिए एक मोमेंटम मिलेगा. माई वाई वॉज ट्रू. फर्स्ट, प्राइमरी, पापा को प्राउड फील कराना है. सेकेंड, आई वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड देन आई स्टार्टेड माई CA फाउंडेशन. आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. CA इंटर, अगेन I cleared in first attempt.
सीए इंटर के टाइम पे एक फेज आया था जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था एंड आई टेक्सटेड माई फ्रेंड. शी टेक्सटेड मी, शालिनी अगर यू कैन डिजर्व ना 6 months का सैलरी लॉस, इफ यू आर नॉट क्लियरिंग इन दिस अटेम्प्ट 6 months और शिफ्ट होगा. 6 months नियरली समझ ले 4 से 5 लाख रुपए इट इज यू आर पेइंग. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट वॉज अ बलबॉन मोमेंट दैट गेव मी अ इग्नाइट वंस अगेन पढ़ने बैठ जाओ. दिस वॉज हाउ डीपली आई वॉज अटैच्ड कि मेरे को जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपना जॉब स्टार्ट करना है. तो इंटर के टाइम पे बोथ ग्रुप्स अगेन हो गया क्लियर. इट वॉज नॉट जस्ट एफर्ट, एफर्ट के साथ राइट माइंडसेट, कॉन्फिडेंस एंड डेफिनेटली लक. ये सारा का ब्लेंड जब हो जाता है ना आपको सक्सेस मिलेगा. एंड घर पे अगेन दैट प्राइड कि हाँ बेटी का सीए इंटर क्लियर हो गया है मेड मी फील अकम्प्लिश्ड. और लगने लग गया चलो अब फाउंडेशन और इंटर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, लाइफ थोड़ा सॉर्टेड है. बस अब सीए फाइनल्स नेक्स्ट 3 years में 2015 में ड्यू है, वो क्लियर हो जाएगा. ऑल सेट, आई विल ज्वाइन अ बिग 4 एंड देयर माई जर्नी विल स्टार्ट. एंड नाउ कम्स सीए फाइनल. November 2015 माई फाइनल्स वॉज ड्यू फर्स्ट अटेम्प्ट. सबका ये ड्रीम होता है फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बने. आई ऑल्सो होल्डेड दैट ड्रीम. कॉन्फिडेंस भी था बट आई नेवर न्यू. ये जो एक बिलीफ है ना, फेथ है खुद पे, दिस विल टेक मी टू अनदर 13 अटेम्प्ट. ठीक है, November 2015 इट स्टार्टेड, आई फेल्ड बट फर्स्ट अटेम्प्ट से व्हाट आई लर्न आई वांट टू ब्रिंग हियर. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, प्लीज अंडरस्टैंड ये आपका गोल्डन अटेम्प्ट है. वाई आई से दिस टाइम ऑल यू नीड इज फुल कंसिस्टेंसी. अपना डिस्ट्रैक्शन को एकदम साइडलाइन कर देना. 3 months 6 months जो भी टाइम है ना, डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ लो. नोबडी कैन स्टॉप यू. इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू क्लियर. वाई? क्योंकि आपको सिर्फ हैंडल करना है, दैट इज द वेट ऑफ सिलेबस. और कोई चीज का प्रेशर नहीं है. यू कैन स्टडी विथ राइट माइंडसेट एंड बिलीव. नाउ कमिंग वाई आई कुड नॉट क्लियर. मेरे को जितना याद है ना, May 2015 माई सिस्टर गॉट मैरिड एंड उसके शादी के टाइम से ही ना सब कोई बोलने लग गए थे कि बस अब पापा को बोलने लग गए थे कि बस अब इसका भी नवंबर में सीए हो जाता है एंड देन शी विल मतलब वी विल ऑल्सो टेक हर इन आवर फैमिली. ऐसे करके उसके रिलेटिव्स बोलने लग गए. सो आई हैड फ्रॉम day 1 आई डोंट नो fear of marriage. I did not want to leave home, leave my parents, mother. मेरे लिए चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ईजी नहीं होता था फ्रॉम वेरी बिगनिंग. मतलब एंड आई अंडरस्टूड, मेरे अंदर ना एक फियर आ गया था कि अगर हम अभी सीए, इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई फुल ऑल माई एफर्ट्स, मेरे को जॉब करने का चांस नहीं मिलेगा एंड आई हैव टू गेट मैरिड. बिकॉज अब ये जो था मेरा मोटिवेशन को, मोमेंटम को स्लो डाउन कर चुका था ऑलरेडी. आई नेवर अंडरस्टूड, स्टिल आई होल्ड इट. सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ गेटिंग मैरिड. फ्रॉम दिस नाउ व्हाट आई लर्न, बहुत चीज ना, लेट द आउटसाइड वर्ल्ड स्पीक, थिंक, बिलीव व्हाट दे वांट. कभी कभी लाइफ ना आपको भगवान जी पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनके प्लान्स पे ट्रस्ट करना चाहिए. आई जस्ट अफेक्टेड माई सेल्फ विथ वॉट आउटसाइड वर्ल्ड इज सेइंग अबाउट माई मैरिज और अबाउट देयर प्लान ऑफ मी गेटिंग मैरिड. तो डोंट डू दैट. फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन पीरियड. अपना वाई को स्ट्रॉन्ग रखना एंड देन यू विल गेट दैट इग्नाइट, दैट पुश फ्रॉम इनसाइड टू टेक द एक्शंस राइटली. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड with second attempt. 2016 में again full of confidence, belief वैसा ही था एंड पता था इस बार हो जाएगा. नहीं क्लियर हुआ. रीजन क्या था? फर्स्ट, एनालाइज नहीं कर पाए, बोथ ग्रुप देना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप ओनली. सेकेंड, एग्जाम के ठीक 15 days पहले से ना मेरा पढ़ाई में मन खत्म हो गया था. आई वॉज सिटिंग विथ माई बुक्स थ्रू आउट द डे बट आई वॉज नॉट डूइंग अ प्रोडक्टिव स्टडी. आई डोंट रिमेंबर वॉट इज द रीजन बट हाँ, फेल होने का यही रीजन था. मूविंग अहेड, अटेम्प्ट 3 November 2016.
This was the attempt. I had first fear attached. It was fear of इस बार अगर फेल हो गए तो बिग फोर से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. बिग फोर्स टेक ओनली दोज हु क्लियर्स द सीए इन फर्स्ट 3 अटेम्प्ट. एंड सो ये बिग फोर वाला एक अटैचमेंट था ना, एंड दैट बाय दैट टाइम थर्ड अटेम्प्ट आई माई क्लोजेस्ट पीपल दे गॉट जॉब इन टू बिग फोर. तो अब वो लोग का स्टेटस देखते हुए माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता था. बहुत बार वो हेल्प भी करता था खुद को मोटिवेट एंड अपलिफ्ट करने के लिए, बट मेनी अ टाइम्स इट डीमोटिवेटेड एंड स्टार्टेड मेकिंग मी फील सैड एंड मेरे एनर्जी को शिफ्ट कर देता था. तो दिस इज अ रीजन. इफ थर्ड अटेम्प्ट ये सब अटैचमेंट्स मत रखो, ठीक है. थोड़ा सा लाइफ को सरेंडर करो, जाने दो. मतलब व्हाट आई हैव लर्नड इज इतना बिग फोर में अगर बिग फोर नहीं होगा, भगवान जी कुछ सेकंड प्लान जरूर करे हुए हैं. सो don't try to figure it out all at once is what I learned from that third attempt. Now moving ahead, fourth attempt. It was May 17, 2017. This time I thought I will go to my sister's place in Bangalore. वहां से पढ़ाई किए, वापस आए, एग्जाम देने गए. फर्स्ट पेपर अकाउंट्स. It did not go well. After coming back home, I evaluated and I somehow analyzed मेरे को 40 नहीं आएगा. मिस्टेक क्या किए, घर आके आंसर शीट्स आंसर चेक नहीं करना चाहिए. आई डिड दैट. एसएफएम के लिए एकदम भी हिम्मत नहीं हो रहा था पढ़ने का. आई वॉज मूविंग विद द लूप ऑफ दैट फियर. अकाउंट्स में फेल हो गए तो, एंड ये मेरे को आगे का एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ने नहीं दिया. तो हमेशा याद रखना, कभी भी ना आप अपना क्वेश्चन पेपर को एग्जाम हॉल में छोड़ के आ जाना. लीव इट, डोंट ब्रिंग इट होम. इफ यू हैव that habit कि आप आके आंसर्स मैच कर रहे हो, this is going to affect your next paper. Now moving ahead with I think fifth attempt, November 2017. Another failure. सच बताए तो इस बार सबसे ज्यादा एफर्ट पुट किए थे. How it was, November 17 ना I started going to my friend's place in Ranchi. I was in a joint family, तो मेरा फोकस थोड़ा सा नहीं हो पाता था घर पे. तो आई थॉट आई शिफ्ट माई प्लेस. एंड मतलब एक डर आ गया था फेल के बाद कि यार कैसे मैनेज होगा, पढ़ने का जगह नहीं मिलता है या घर पे दिन भर आना जाना लगा रहता है. तो ऑलवेज रिमेम्बर, पता है ऊपर वाला ना कुछ प्लान करके भेजेंगे ऑफ वेर एवर ही फील्स यू नीड हिज हेल्प. तो all of a sudden I was really worried about it after my result, fourth attempt वाले के लिए. And my friend, she called me and she told me कि you come to my place, nobody is there, you can study here. And I just used to leave my home every morning at 8 a.m. and I used to come back till 6-7 p.m. and पूरा दिन उसके घर पे रहते थे. And I'm really grateful to her who has really helped me a lot in this journey. And now moving ahead with another sixth attempt. It was May 2018. Again, this attempt also I prepared from my friend's place. And पढ़ने के बाद भी ना पता नहीं है क्या होता था, एग्जाम के पहले बहुत नेगेटिव हो जाते थे. मन नहीं करता था, खुद को पुश भी करते थे, ट्राई भी करते थे, सब कुछ करते थे, बट नहीं हो पा रहा था. बहुत अजीब सा टाइम था. और मतलब बस मन करता था आई लॉक माई सेल्फ समवेयर, एकदम डार्क कर ले रूम को एंड आई सिट देयर, नोबडी कम, जस्ट लेट दैट बी माई वर्ल्ड. एंड वो टाइम ना मतलब विद ईच अटेम्प्ट इट स्टार्टेड गेटिंग हेवियर एंड हेवियर. एंड मतलब अ पार्ट ऑफ मी स्टार्टेड ब्रेकिंग. I was never prepared for this 14 attempts. 6 तक तो पूरा हिम्मत खत्म हो चुका था. बट एज आई से समझ नहीं आता है जब लाइफ में डिफिकल्ट फेज चलता है ना, तो वी डोंट अंडरस्टैंड, बट ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स हमेशा रहता है. नाउ गॉड न्यू कि ये एक पार्ट से हार चुकी है. शी इज फीलिंग लो, आई नीड टू हेल्प हर. एंड हाउ ही केम इन टू माई लाइफ. भगवान जी मेरे को फर्स्ट जॉब दिलाए एज अ CA सेमी क्वालिफाइड इन बैंगलोर, दैट टू MNC. That was a big relief for me for my 7th attempt.
नवंबर में था एंड लाइक 7th अटेम्प्ट एक रूटीन चेंज हो गया फ्रॉम रांची। आई शिफ्टेड टू बैंगलोर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, क्योंकि इतना बार पढ़ा हुआ था तो आई वॉज लाइक कि ऑफिस के साथ भी करेंगे, इट्स मैनेजेबल। बाय 7-8 आई यूज टू कम फ्रॉम ऑफिस, 9:30-10 I used to sit and I used to study till 3 to 4 a.m. and then morning में around 9 उठ के 10 बजे तक वापस ऑफिस। So this was the routine and Saturday Sunday मिल जाता था पूरा दिन पढ़ने के लिए। So things थोड़ा सा different अब स्टार्ट हुआ। अब लगा कि ठीक है, अब ऑफिस के साथ आई विल बी एबल। तो ये जो एक माइंड में था ना, करियर में पीछे रह गए हैं, ये थोड़ा सा साइडलाइन हो गया था बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेमी क्वालिफाइड। एंड नाउ अगेन 7th अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ ऑफिस में। अब लीव मिलना, क्योंकि ऑफिस में था कि आई वोंट गेट लीव्स इफ आई डोंट क्लियर आफ्टर दिस अटेम्प्ट। 8th अटेम्प्ट अगेन, इट वॉज 2019, ठीक है। 8th अटेम्प्ट फिर से नहीं हुआ। ऐसे करते करते 9th अटेम्प्ट पहुंच गए। I was in same company. Somehow I managed with exam leave. My manager was really a genuine, kind person. He used to understand. एक चीज था ना, when I was working along with my preparation, I just did cut off myself. I just had कि ऑफिस जाना है। लंच टाइम में भी I used to have lunch for 5-10 minutes and I used to come back to my workplace and I used to study. कोई भी इवेंट्स होता था ऑफिस में, आई सिंपली यूज टू अवॉइड ये सारा ना। विथ टाइम आई रियलाइज्ड एज आई वॉज ग्रोइंग आई डिड मिस्टेक दीज थिंग्स। लाइफ में लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गए थे। ऐसा लगता था इवन इफ आई एम पोस्टिंग अ पिक्चर ऑन सोशल मीडिया ना, इट फेल्ट लाइक अ क्राइम विच आई एम डूइंग। एंड एवरी अटेम्प्ट बिकेम हेवियर हेवियर हेवियर, पेन बहुत हैवी हो गया था। Now 9th attempt, this time now honestly I worked more than anyone can with office, and जब वो attempt fail हुए, the result was out on 17th of January or 16th of January 2020. I was sitting and waiting, fingers crossed for my result. My sister, she was next to me. I was at her house. I still remember the dress I was wearing, the sofa, everything. And again another call, nahi hua. I did not used to check myself. I gave it to my elder sister and she just entered my roll number. She called to my sister. She said nahi hua hai. And when she told me, it was like the whole world has ended. Here my life ends. I'm done and dusted. I still remember the bed sheet, the place, the night, how I cried. I just was like life is over for me. Next morning, when I checked my phone, after waking up immediately, I had a text about my friend's father. He is no more. That gave me a realization. Failure is such a small part. Till the time you are alive, you have energy. And ये पापा हमेशा बोलते थे, आपके पास जब तक मूवमेंट है, आपका फिजिकल बॉडी सपोर्ट करना चाहिए, मेंटल बॉडी सपोर्ट करना चाहिए। इफ यू आर इन टू दैट प्लेस, योर बॉडी एंड माइंड इज सपोर्टिंग, यू कांट बी अ फेलियर। वो फेलियर सक्सेस में चेंज होगा। इसको लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन में मत डालो। एंड दैट डे मॉर्निंग आई रियलाइज, यार मेरा पेन तो बहुत छोटा है, इट्स जस्ट अ फेलियर, कोई बात नहीं, इस अटेम्प्ट नहीं हुआ। वॉट अबाउट द पर्सन जो चले जाते हैं इस वर्ल्ड से। एंड अगेन शायद मतलब पता नहीं, भगवान जी कहीं ना कहीं से ना मेरे को स्ट्रेंथ दे देते थे फॉर समथिंग आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड। हाँ, मतलब करते 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 इट वॉज 13th अटेम्प्ट आ गया, 14th वॉज द फाइनल अटेम्प्ट इन विच आई क्लियर्ड। जर्नी बहुत लंबा था, बहुत खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके थे, खुद से पहले हुए थे। सेकंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, सोशल गैदरिंग, बहुत इनएडुकेट, इनसिग्निफिकेंट, छोटा फील होता था। बट ये समझ आया ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए
what world is thinking about you. What matters truly is you have to succeed. अगर आप कोई सपना देखे हो ना, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, either you fail and you start again or you quit. अगर आप क्विट करोगे ना, आप लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करोगे एंड शायद पीपल अराउंड विल फॉरगेट आपका एक सपना था जिसको आप क्विट किए हो, बट वो आपके साथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ रहेगा दैट यू डिड क्विट, जो आप कर सकते थे. एंड फेल होना टेम्पररी है. इट ऑल नीड्स इज राइट मेंटल स्ट्रेंथ, क्लैरिटी. मेरे साथ ना एक मेजर गलती क्या हुआ, आई वॉज नेवर एबल टू एनालाइज माई सिचुएशन. आई वॉज नेवर एबल टू sit and figure out what mistakes I did in previous attempt जिसके कारण मेरा clear नहीं हुआ. I was just chasing to get the result. I was not sitting with myself with the right mindset. हमेशा ना motivation और right positive मतलब belief नहीं काम आएगा. आपको root cause समझना होगा कि आप क्यों clear नहीं कर पा रहे हो, problem कहाँ आ रहा है. आपको pattern break करना होगा, आपको एनर्जी शिफ्ट करना होगा. देयर आर मल्टीपल लेयर्स फॉर सक्सेस एंड एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी. आई यूज्ड टू फील लाइक इवन व्हेन आई एम मीटिंग माय फ्रेंड्स, अब सब सीए कम्युनिटी को बिलोंग करते, एक एक करके सबको ही सीए बन गया, तो बहुत अजीब लगता था हर टाइम. इट वॉज लाइक दे आर जजिंग मी. ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं जज कर रहे होंगे, बट इट्स योर थॉट दैट इज टेलिंग यू दे आर जजिंग यू. There are still people around जो शायद अभी भी वेट कर रहे कि आप सक्सेसफुल हो. Do it for at least few of those जो आप पे ट्रस्ट करते हैं. ठीक है, आपका वाई स्ट्रॉन्ग है. मेरे को पता था, लाइक इट वॉज माई 13th अटेम्प्ट ना. मेरे को पापा का कंटिन्यूअस सपोर्ट मिला. He has been the person who has pushed me every time I was about to give up. He used to take to me to exam centers. He used to remind me of how all the successful people have failed, struggled, and they have achieved big. He has always told me, we all are God's child. बेटी, भगवान पे भरोसा रखना, अच्छा होगा, तुम्हारा भी अच्छा दिन आएगा. वो हमेशा से सिखाए हार नहीं मानना है. बट 2000 it was 21 September 12th, when my 13th attempt was out, I failed now. First time it was 1:30 p.m. I saw him crying right before my eyes. उस दिन I felt कि बस अब कोई कुछ रह ही नहीं गया है. अब पापा भी गिव अप कर चुके हैं, तो the time has come कि मेरे को भी गिव अप कर देना चाहिए. अब नहीं होगा. और एंड वो टाइम ऐसा था कि I actually had given up. पापा भी बोले बेटी छोड़ दे, पता नहीं है तेरे किस्मत में क्या लिखा है, भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं. क्योंकि पापा ना वो बहुत प्रे करते थे एंड उनको उस टाइम पे लाइफ से, भगवान से, सबसे विश्वास उठ गया था. बट आफ्टर फ्यू डेज ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड, एक बार और ट्राई करे, एक लास्ट टाइम. बेटी छोड़ना, बस ट्राई करते हैं. एंड ही वॉन्टेड मी टू ट्राई बिकॉज बाय दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी टर्न 30. उनके लिए ना कभी भी मेरा मैरिज इम्पॉर्टेंट नहीं था. फॉर हिम इट रियली मैटर्ड. वो हमेशा सबको यही बोलते थे कि ही विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ द डे आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही हैज वेटेड फॉर दैट पीरियड. तो आपको समझना होगा कि देयर आर पीपल हु लव्स यू, हु वांट्स टू सी यू सक्सेसफुल. आपके पेरेंट्स है, तो अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, आने के लिए आपको ट्राई करना होगा. गिव अप, क्विटिंग इज नॉट द ऑप्शन, प्लीज अंडरस्टैंड. तो वो अटेम्प्ट में 13 जब था ना, पापा बोले छोड़, लेट्स नॉट थिंक. अब आई वोंट आस्क यू, तुम लाइक यू हैव टू स्टडी विथ फ्री माइंड, जैसे करना है कर, एक बार और दे. दैट वॉज अगेन अनदर, बिकॉज पापा मेरे को यही बोले कि अगर सीए नहीं करेगी बेटी तो क्या, इट्स ऑलरेडी यू आर 30. अब ही डू यू थिंक कि तेरे लिए इजी रहेगा बिना ये डिग्री के? अब मान ले आज से यू आर क्विटिंग सीए, कल से व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेकिंग अप?
He asked me such a deep question and I could not find any answer क्योंकि मेरे पास प्लान भी कभी था ही नहीं. ग्रेड 7 में 2002 में ही I had decided to become a chartered accountant and it was 2021. So I had to give up. I had to stand strong. Sorry, I did not had to give up. I mean, I had to stand strong. And there again, 14th attempt, I worked on my mindset. I activated my energies. I started learning, revising things with an open heart. अपने fear को I left it behind. Again, इस time पे God did send me one person. She helped me a lot to push me out and to make me work, take actions rightly. So, despite for years I felt I am unlucky, God is not supporting me, unfair है मेरे साथ. बट ना वो साइड में हेल्प कर रहे थे. उनको जहां पता था दिस गर्ल्स नीड्स सपोर्ट राइट नाउ, ही वॉज सेंडिंग दैट सपोर्ट टू मी. बट जब लाइफ में चैलेंजेस आता है ना, वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज दैट, वी डोंट सी, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल अस. ठीक है, तो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ बहुत ब्यूटिफुल है. वी हैव टू लर्न टू स्टे स्ट्रॉन्ग. हम सबका, सारे सोल्स का ना जर्नी बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट है. इफ गॉड इज टेस्टिंग यू बाय एनी चांस, अंडरस्टैंड every child who is his favorite is tested and your breakdown will soon be your breakthrough. Your pain will be your purpose of life. Now my purpose is to help all those students who feel stuck, all those dreamer who wants to achieve something in life, to all those students जो अपने को, अपने पेरेंट्स के लाइफ को ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्टेबल बनाना चाहते हैं. आई एम हियर टू सपोर्ट देम. माई पेन टर्न्ड इनटू अ पर्पस, सो कैन योर्स. Just start thinking about extraordinary living. Success is always following till the day you don't give up. मेरे फलक के आप हो निज़ार, मेरे पापा, मेरे पापा. Stay connected. Do subscribe to my channel. Thank you for connecting with my story. I hope it helped you.